Good morning, students. Welcome back to our online sessions of Science Class 9th. I hope you all are fine at your homes with your families. So I requested you, without unnecessary work, don't go outside. It's a pandemic situations right now. So stay home, stay safe. Now we're discussing about in a chapter of 5, that is cell, fundamental unit of life, cell. In the previous 4 sections, we have already discussing about how the cell is important for the organisms, okay, as well as we're discussing about the why cell is called fundamental unit of cell, how the division of working of cell that can be seen into the multicellular organisms, what is called as a part of the cell wall, what is called eukaryotic organism, what is called prokaryotic organisms, what is called cell membrane, what is called cytoplasm, what is the diffusion method, what is the plasmolysis process, what is the osmosis process in a part of the solution like hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. Also we have discussing about endoplasmic reticulums in which smooth here, rough here. Also we discussing about specific forms like Golgi body and the lysosomes. So these are the generally topics which we have to cover in our previous classes in about the cell. Now in the chapter of 5 there is only 2 or 3 topics which is just remaining that should be completed this chapter of their form. It's a part of mitochondria and another is a part is called plastids. 2 formation is there. Mitochondria, the structure of mitochondria that we'll see on the left hand side, that is the structure of mitochondria in which oxysomes, DNA, ribosomes, outer membrane, inner membrane in the crest is there. And at the right hand side the image of plastids in which also outer inner membrane, stroma, lumen, thylakoid and the granum. These are the general structures which is implemented as a part of the plastids and the mitochondria. So first let's start to the work of mitochondria. So what is called mitochondria? So mitochondria is very small, like ultra minute formation of tubular structure. It may be rod or round shaped structure which is distributed into the cytoplasm. Mitochondria is what? Mitochondria is a very small, like a very ultra minute particles like a structures which is in a round shape and it is diffuses into the cytoplasm. That should be generally structure. The structure of mitochondria is distributed into the cytoplasm. Each and every form of structure of mitochondria like a very minute ultratubular structures which is in a round shape and which is distributed the structure entirely into the cytoplasm. Now each mitochondria, when you see that 2 layer of membrane, each mitochondria having a 2 layer, outer membrane layer and inner membrane layer. 2 layer is there. So each mitochondria that generally possesses the double membrane of covering of layer which is called outer membrane and inner membrane. The structure of mitochondria having the 2 cover of layer, it is called outer membrane and inner membrane. So outer membrane is generally having a specific pores, small pores having the outer membrane, where the internal membrane is filled with the liquid. Outer membrane having the pores where the internal membrane having the liquid substances which will be filled into the part of the is. Because of that, now the structure of outer membrane is slightly less comparison to the inner membrane. In the mitochondria, the structure is inner membrane is folded, which filled with the liquid substances and having a folded structure. Why? Because the space, internal space of that formations of the internal membrane is quite large comparison to the outer membrane. तो जो space available होता है internal membrane का वो ज़्यादा है comparison to the outer membrane से, इसलिए जो mitochondria का structure होता है वो folded structure का होता है inner membrane का comparison to the outer membrane. तो inner membrane has quite large surface area comparison to the outer membrane. तो mitochondria का general structures में होता है. तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फोल्डेड होता है. इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्ट. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इज लाइक अ फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रिस्ट. दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्ट. सो आउटर मेम्ब्रेन having a less space comparison to the inner membrane and inner membrane having a folded structure. That folded structure is known as a crest which is filled by the liquid granules. वो liquid granules का बना हुआ रहता है. Now upper side जो होता है क्रिस्ट का, the upper side of crest that is generally shaped with the small rounded forms. एक क्रिस्ट का जो अपर साइड होता है, ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको ऑक्सीजोम्स कहते हैं. तो स्लाइटली द अपर साइड ऑफ अ क्रिस्ट हैविंग अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स
विच इज जनरली कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स, उसको हम ऑक्सीजोम्स में कंसिडर करते हैं। और इंटरनल कैविटी जो होता है मिटोकॉन्ड्रिया का, इंटरनल कैविटी दैट इज फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है जो इंटरसेलुलर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग अ जनरली इंटरनल कैविटी इज अ जेल लाइक सब्सटेंस विच हेल्प्स टू द सिंथेसाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन, ऑल्सो दैट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ रिबोसोम्स। जो इंटरनल कैविटी होता है उसके अंदर रिबोसोम्स भी होते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिबोसोम्स होता है। उसके अलावा डीएनए इज ऑल्सो देयर, डीएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिबोसोम एज वेल एज फॉस्फेट, ये सारे सब्सटेंसेस एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कैविटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। नाउ दिस टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनलेस सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली एब्सेंट इनटू द रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स। मैमल्स का जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर एब्सेंट्स होते हैं, तो जनरली दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से आपको मैं बोल दूं इसका स्ट्रक्चर क्या है। Mitochondria is generally a very ultraminute, tubular, round-shaped structure which is distributed into the cytoplasm. Now, each mitochondria generally possesses a double membrane of layer that is called outer membrane and inner membrane. Outer membrane having the pores, but the inner membrane having the liquid fluid structure. Inner membrane that can be easily folded because it having the larger surface area compared to the outer membrane. Now that folded structure of that mitochondria of an internal pores that is called as a crest, उसको हम crest कहते हैं, and the upper side of a crest having the formation of the pores like dotted structure that is called as the oxysomes, that is generally called as the oxysomes. Each mitochondria having the internal cavity generally possesses the jelly-like substances which helps to implement into the protein synthesization. Also that oxysomes as well as there is ribosomes, DNA and phosphate, which are the substances which is also available into the mitochondria's internal cavity structure, and this is the structure of mitochondria is generally absent into the red blood cell of mammals, उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो that is the structure of mitochondria. Now which type of functions, किस तरह के functions जो है वो mitochondria perform करता है। So generally mitochondria is help to work onto the cellular respiration. The respiration which should be done inside our cell, it is called cellular respiration. So that mitochondria generally possesses the work of cellular respiration. तो cellular respiration इसके थ्रू होता है। उसके अलावा also transforms the carbohydrates of the cells into water and carbon dioxide. उसको बॉडी के अंदर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, वो मिटोकॉन्ड्रिया है उसको सिंपल फॉर्म में सेंड आउट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म है उसको सिंपलर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट इज जनरली पार्ट ऑफ सिंथेसाइजेशन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कंप्लीमेंट होकर वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को एज अ पार्ट ऑफ फूड एटीपी के अंदर सिंथेसाइज करता है। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होते हैं एटीपी में वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होते हैं। और सेल जो यूज़ करते हैं इस तरह के एटीपी के अंदर जो एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोवाइडेड करता है। एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस द प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। Mitochondria is produce the protein, so it is also known as a semi-autonomous organism system. So mitochondria generally produce the energy in form of protein for the cells, so it is also known as a powerhouse of cell. इसीलिए mitochondria को हम powerhouse of cell भी कहते हैं, क्योंकि as a part of the energy resources of cell, mitochondria proteins को generated करता है cell के लिए, इसीलिए उसको powerhouse of cell भी कहा जाता है। तो that is the general structure of mitochondria and उसके functions क्या है वो मैंने आपको अभी समझा दिए। दूसरा जो टॉपिक है हमारा किसके बारे में है, प्लास्टिड्स के बारे में है। प्लास्टिड्स, देखिए प्लास्टिड्स अकर ऑलमोस्ट इनटू द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। Plastids are generally occurs into only the plant cell. It cannot be generally occurs into the animal cells. The plastids have their own genetic modules as well as ribosomes. प्लास्टिक्स के अंदर खुद का एक डीएनए मॉड्यूल्स होता है और क्या होते हैं, रिबोसोम्स भी होते हैं। तो plastids that generally contain their own genetic materials and the ribosomes. Due to that genetic materials which having the plastids that can be multiply in a formations of the replicated, एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर वो नए नए फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक्स मॉड्यूल को प्रोड्यूस करते हैं।
तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, अभी आपके स्टडी में, फिर आगे जाएंगे तो और 3 तरह के पढ़ने को मिलेंगे आपको। सो इन योर सिलेबस वी हैव डिस्कसिंग 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। One is called chloroplast, CHLORO, chloroplast. Second is called chromoplast, CHROMO, chromoplast. And third is called leucoplast, LEUCO. तो 3 तरह के प्लास्टिड्स जो है इसके बारे में पढ़ना है, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हैविंग द ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर प्लास्टिड, जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी हर कलर में होंगे। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो कलरलेस होता है। 3 तरह के प्लास्टिड्स, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी के पिगमेंट्स में होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, पहले हम डिस्कशन करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है दैट इज बेस्ड ऑन क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लास्टिड्स में भी ये क्लोरोप्लास्ट पे बेस्ड में हमने उसके फिगर को ड्रॉ किया हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में भी पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। क्लोरोप्लास्ट जनरली फाउंड इनटू द ग्रीन कलर्स algae as well as the higher plants. Chloroplast that can be generally found into the green plants as well as the algae, जो higher order of green plants है, और algae है, green algae जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक्स रीजन्स के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उसमें ग्रीन algae एंड द ग्रीन प्लांट्स, ये 2 होते हैं, और ये दोनों ग्रीन पिगमेंट्स के होते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज फाउंड इनटू द थाइकोड ऑफ लेयर। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो दिखता है ना आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ थाइक्लोइड। ओके, सो दैट ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज जनरली कॉल्ड एज द थाइक्लोइड, उसको हम थाइक्लोइड कहते हैं। और ये थाइक्लोइड जो होता है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो अब दिख रहे हैं उसको हम थाइक्लोइड कहते हैं ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको आप किचन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। प्लास्टिड्स दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज अ किचन ऑफ सेल। तो ये केवल लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बनाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आप देखिए इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके 2 स्पेसिफिक एरियाज है, आप देखिए ग्रेनम मैंने लिखा है, ग्रेना, और एक को हम कहते हैं स्टोमा। इसके 2 स्पेसिफिक एरियाज है, वो जो राउंड स्ट्रक्चर है उसको स्टोमा, और जो बीच वाली स्पेस है उसको हम ग्रेनम यानी कि ग्रेना कहते हैं। तो इसके 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है विच इज कॉल्ड ग्रेना एंड स्टोमम। तो क्लोरोप्लास्ट में पहला जो है ग्रेना को हम बारे में डिस्कशन करते हैं, ग्रेना हम किसको कहते हैं। तो देयर आर सेवरल ग्रेना विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ऐसे बहुत तरह के ग्रेनास जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। देयर आर सेवरल ग्रेनास विच इज अवेलेबल इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत तरह के ऐसे ग्रेनम स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और ये जो थाइक्लोइड डिसीज है ना, थाइक्लोइड डिसीज का बने हुए रहते हैं। दैट जनरली ग्रेनम्स आर मोस्टली मेड बाय द थाइक्लोइड डिजीज, और ये थाइक्लोइड डिजीज के ऊपर एक सैक लाइक सराउंडेड सिस्टम्स होता है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन्स। तो थाइक्लोइड स्ट्रक्चर्स पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है मेम्ब्रेन का जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये जनरली हेल्प करता है आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके अलावा एटम्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च को फॉर्मेशन है या डीएनए है, रिबोसोम्स है, ये सब जो होते हैं वो ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिबोसोम्स, डीएनए, स्टार्च, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये सब ग्रेनम के अंदर ही होते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल जो इसके अंदर अवेलेबल होता है वो क्लोरोफिल जो होता है वो थाइक्लोइड के फॉर्म में होता है। वो जो राउंड स्ट्रक्चर थाइक्लोइड दिख रहा है उस थाइक्लोइड के अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प होता है। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कहाँ पे होता है, एक ग्रेनम के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा आता है उसका पोर्शन जिसको हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है, जो स्पेस अवेलेबल होती है ना वो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होता है जो ग्रेना के अंदर पाया जाता है जिसको हम स्टोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोमा। और जो डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो इस स्टोमा के अंदर होता है। तो डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दैट कैन बी डन इनटू द स्टोमम। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। प्लास्टिड्स में भी पहला क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, क्रोमोप्लास्ट। अभी क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया
कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग कलर्स के पिगमेंट में होते हैं। दे आर जनरली हैविंग अ डिफरेंट कलर्स ऑफ पिगमेंट, वाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, एटसेट्रा, अलग अलग कलर के अंदर हो सकते हैं। पर ये जो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग सेगमेंट में होते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? तो जनरली ये जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं एज अ रिजल्ट डिफरेंट कलर के अंदर होने की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स दैट गेट बी अट्रैक्टेड फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें पोलन ट्यूब्स के अंदर हम मूव आउट करते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है उस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो इंसेक्ट्स, जिसको कैरियर कहते हैं, पोलन कैरियर्स, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो डिफरेंट कलर के सेगमेंट में होते हैं। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, उसका मेन काम होता है फूड को स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट और प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स का तीसरा सेगमेंट है जो कलरलेस सेगमेंट है, उसका मेन काम होता है फूड को स्टोर करना एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट और प्रोटीन। तो क्लियर हो गया प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको वैकल्स कहते हैं। वैकल्स यानी कि स्टोरेज ऑफ बैग, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं। वैकल्स जो है एक तरह के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विद फिल्ड विद द लिक्विड मेम्ब्रेन्स, लिक्विड सब्सटेंसेस के बने हुए रहते हैं और उसके आसपास मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन का स्पेस होता है। तो वैकल्स आर ओनली दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज फिल्ड विद द लिक्विड सब्सटेंस एंड कवर्ड विद द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इसीलिए इस तरह के जो फॉर्मेशंस जो मेम्ब्रेन होते हैं ना इसके आसपास, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन विच कैन बी सीन ऑन टू द आउटर सरफेस ऑफ वैकल्स, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। वैकल्स जो एक तरह के स्टोरेज बैग्स होते हैं, जैसे अभी बैग के अंदर कुछ भी आप स्टोर करते हो ना, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वैकल्स जो होते हैं वन टाइप ऑफ द स्टोरेज ऑफ बैग, जहाँ पे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। तो इस तरह के जो वैकल्स होते हैं ना, वैकल्स के अंदर ज़्यादातर आप क्या स्टोर करते हो? फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करते हो, इसमें ग्लाइकोजिन और प्रोटीन के फॉर्म में जो होता है फूड वहाँ पे स्टोर होता है। तो वैकल्स जो है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर दोनों में डिफरेंट होता है। वैकल्स इन प्लांट सेल और वैकल्स इन एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट है। पहले हम डिस्कशन करते हैं प्लांट सेल के बारे में। अब ये जो वैकल्स जो प्लांट सेल के अंदर होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, उसके साथ परमानेंट पोजीशन में होता है और उसके साथ साथ वो क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। तो वैकल्स इन अ प्लांट सेल आर वेरी लार्ज, एक्सपांडेड, प्रोमिनेंट एंड इन अ परमानेंट पोजिशन। ऑलमोस्ट जो सेल स्पेस होती है प्लांट के अंदर 90% एरिया केवल फूड वैकल्स जो है प्लांट का वो ऑक्यूपाई करता है। तो वैकल ऑलमोस्ट कंटेन 90% स्पेस ऑफ द टोटल सेल इनटू द प्लांट सेल। सिंस तो वैकल्स आर सो लार्ज, 90% एरिया अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो दे आर वेरी लार्ज, सो दे ऑलवेज बी सिचुएटेड इनटू द मिडल ऑफ सेल। मिडल ऑफ सेल के अंदर होते हैं, लेकिन मिडल ऑफ सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसलिए वैकल्स जैसे मिडल ऑफ सेल पे आएंगे तो वो न्यूक्लियस को थोड़ा सा पुश करेंगे टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस दैट शुड बी पुश्ड towards the cytoplasm when the vacuoles that is situated into the middle of cell into the food vacuole in plants। तो ये जो पूरा सेल वॉल की तरफ जो मूव होता है, तो प्लांट्स के अंदर जो फूड वैकल्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं वाटर है, शुगर है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट है, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंसीडर कहाँ पे होते हैं? इस फूड वैकल्स ऑफ प्लांट के अंदर। और जिसके वजह से इसके प्लांट्स का जो स्ट्रॉन्गनेस या रिजिड स्ट्रक्चर जो होता है वो इसके वजह से होता है, इट कीप्स प्लांट रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये पूरा टॉपिक जो होता है वो कि उसके बारे में वैकल्स इन प्लांट सेल। लेकिन इससे डिफरेंट है वैकल्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो वैकल्स होता है दे आर वेरी स्मॉल एंड नॉट बी प्रोमिनेंट एंड एक्सपांडेड एंड दे आर वेरी टेम्पररी। एनिमल सेल के अंदर जो फूड वैकल होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, टेम्पररी होता है, नॉट बी एक्सपांडेड और नॉट बी प्रोमिनेंट। तो सिंस वैकल्स आर वेरी स्मॉल into the animal cell, so they are not occupy almost space into the plant cell, so there is no any nucleus towards movement of cell wall, this type of process that can be done into that animal cell। तो वैकल्स इसमें होता है, तो no such situation that can be occur into the animal cell of this formation। इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन। जो वैकल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर, द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेशन, और ये कंसिडर करता है वाटर को, ग्लूकोज को, लिपिड को, ग्लाइकोजन, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस इसको स्टोर करता है। मोरेवर जैसे ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा है या जो पैरामीशियम है, विच जनरली यूज टू डाइजेस्ट द फूड एज अ पार्ट ऑफ फूड वैकल। तो जो एमीबा होता है ना, एमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर एक फूड वैकल होता है जिसमें वो फूड जैसे वो इंजेक्ट करता है या इजेक्ट करता है, एब्जॉर्व करता है, डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेशन करता है, तो एवरी टाइम उसका जो शेप होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है।
तो दैट शुड बी जनरली अ डिफरेंस ऑफ फूड व्हीकल इन एनिमल्स एंड प्लांट। क्लियर? तो आई होप कि आज जो आपने पढ़ा है, आज का जो टॉपिक डिस्कशन किया है जिसमें प्लास्टिड्स है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है और फूड व्हीकल्स है, जिसमें एनिमल सेल के अंदर फूड व्हीकल और प्लांट सेल के अंदर फूड व्हीकल के क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा है। तो आपका जो सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में, उसमें यही सारे टॉपिक्स है जो आज मैंने कवर किए हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। विल यू मीट टुमारो व्हेन नेक्स्ट टाइम वी डिस्कसिंग अनदर चैप्टर विद अनदर टॉपिक्स। टिल स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग and keep more practicing about these topics, and just stay home, stay safe, and using that methods always be adapted to the adequate method of learning. So whatever you have to learn today, just revise it, practice it, and always be try to solve this type of questions as a part of on written words. Okay, so requested to you, stay home, stay safe, and keep revising, keep studying, keep updating yourself as a part of knowledge. Take care, bye.